ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पे हम नक्षत्रों की बात करते हैं, टुडे व्हाट आई डू इज टुडे आई विल टीच यू अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग नक्षत्रस। राइट, अभी तक आपने जो भी यूट्यूब पे सुना होगा, जो भी आपने पढ़ा होगा, और जो मैं आपको आज बताऊंगा, it is going to be absolutely different. That is for sure. That is point number one. Point number two is nakshatras, according to me, has the highest priority in the Jyotisha. You will be surprised that Parashara Muni do not talk about nakshatras a lot. I must tell you this thing. Parashara Muni is talking about bhavas, gopas, gopis, that means rashis and everything. But Parashara Muni isn't talking about nakshatras a lot. So then who is talking about nakshatras all the time? Who is the father of nakshatras? Who is one energy that has created nakshatras? The energy that has created nakshatras is no one else but it's the Shiva. So Shiva is the owner of all the nakshatra mandala that you see. Okay. But you know what? When I started learning Jyotisha, and especially I started learning nakshatras, I realized that I was a fool. Whatever I was learning from almost 1.5 years, when I actually understood the nakshatras, it was completely different. So that is what I am going to teach you today. What is the difference in the nakshatras that you learn over YouTube, in the nakshatras that you learn from books, and what I am going to teach you. So in next 10 to 15 minutes, the entire mindset will change. Your questions will change. You will have a very different set of questions. Okay, so that's what I'm going to teach you today. Ladies and gentlemen, what is the meaning of the word nakshatra? That's the most important thing. Lot of books says, nakshatra is a map, is a, map of the sky, and so many other things. But let me tell you one thing. You have to divide this word into two parts. The first part is known as the naksha, and the second part is tra. Naksha and tra. Now, what exactly is the meaning of naksha? Naksha is a very simple meaning, is a map. Okay. And what is the meaning of tra? Tra, the meaning of tra is nothing but it is a tool. Okay, it is a tool. It is, an instrument. Okay, so the word tra means instrument. Okay, so it is instrument. Now I'll give you some examples. Okay, what are those examples? You see, what is the meaning of mantra? The word mantra means an instrument or a tool for mind. Okay, tra, mantra. Tra means a tool.
Okay, an instrument of your mind, tool of your mind. It is a combination that can that can affect your mind, that can control your mind, that can set your mind right. Mantra, yantra, huh? Yantra. What is the word yan? Yan means sacred. Huh? Yan means sacred shapes or numbers. Yan means sacred, pavitra, name, shapes, alphabets, or numbers. So it is yantra is a tool to understand sacred shapes and numbers. It becomes yantra. It becomes yantra. Okay? Any confusion? No confusion. What is a tantra? Tana means body. It is a tool through which we can make effects on a body. Tantra. Tantra. When we make effects on somebody's body through a tool, it becomes tantra. Tantra, mantra, yantra. Similarly, we have shastra. Shastra, the meaning of shas means something which is immortal, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता. Okay, it is a tool which is giving you the knowledge about something which is immortal. They are known as shastras. Shas also means itself, as a weapon to lead a good life, so it is shastra. Okay, on the same time, just like that, we have nakshatras. Okay, so what is a nakshatra? It is basically a tool which can give you the information about the sky. Okay, it is a tool that gives you, ये विभाजन करता है स्काई को, आसमान को, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए. Okay, so that is known as nakshatra. Now, when I was learning nakshatras, I was also thinking that nakshatras are nothing but they are combinations, or they are simply the stars organized in a particular pattern. That's what a nakshatra is. And in the scientific way, we call it constellations. Okay, they are just, one of the pattern in which certain stars are aligned in the sky. But what our shastras say? What does Shiv Mahapuran say? What is a nakshatra? Nakshatra are the abodes of devatas. ये देवताओं के घर हैं. These are the devata homes. 33 कोटि देवी देवता. 33 कोटि देवी देवता. Okay, so please do not consider that it is 33 crore devi devata.
It is 33 koti devi devata. You know, the meaning of the koti is extremely powerful. Nobody is in comparison. That is the meaning of koti. So what are 33 koti devi devta? कौन कौन से हैं? They are 12 Adityas, 11 Rudras, 8 Vasus, 1 Prajapati, which is Brahma, and 1 Vishnu. Sorry, Indra. So these are 33 koti devi devata, and people call it 33 crore, which is wrong. Actually, nakshatras are the homes of these 33 koti devatas. Simple, याद रखना. They are the homes. इनका residence है. So these are the residents of 33 koti devi devatas. Simple. अगर आपने ये चीज अपने दिमाग में रखी तो आपको नक्षत्रस बहुत यूनिक वे से समझ में आएंगे. अदरवाइज आपको नक्षत्रस कभी भी समझ में नहीं आएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड nakshatras the way I want you to understand. Nakshatras are the homes of the devatas. They are the abodes of the devatas. Simple. These are the abodes where the devatas reside. जहां पर देवता रहते हैं. और जहां पर देवता रहते होंगे वहां पर देवताओं की एनर्जी होगी. One has to be very clear on this. So these are, there is a shloka that I read, the first shloka, na narati na sharati at nakshatri. Na narati na sharati at nakshatri means na narati. Nakshatras are the things that do not move. Okay? Na narati, something that doesn't move. Na narati na sharati, something that cannot be destroyed. It cannot be destroyed. At nakshatri, that is the nakshatri. Something that doesn't move, something that cannot be destroyed is a nakshatra. हनुमान जी ने रवि भक्ष लिया था, बट हनुमान जी कभी भी किसी नक्षत्र को भक्ष नहीं सकते, क्योंकि ग्रह और नक्षत्र दो अलग अलग चीजें हैं और इनकी आपस में कोई एसोसिएशन ही नहीं है. आई रिपीट दिस वर्ड, इनकी आपस में कोई एसोसिएशन ही नहीं है. आप बोलोगे नवनीत सर आप क्या बोल रहे हो कि नक्षत्रों की ग्रहों के साथ कोई लॉर्डशिप या कुछ ऐसा ही नहीं है. आई विल प्रूव इट इन नेक्स्ट 10 minutes. There is only one system through which we associate planets with the nakshatras. That's just one system. So in a layman terms, in books, you know, what do you read as nakshatras? They are also known as nakshetra. This is known as region of the sky. Naksha plus Tara. Naksh plus Tara, which is map of stars. These are very
basic terms. The another meaning of nakshatra that you must understand based on the Shastras is that Naksha also mean to get closer look, to get closer. And Tra means to preserve. एक आत्मा ने जन्म लिया, उस आत्मा ने अपने जीवन में क्या किया, वो कैसी एनर्जी वो आत्मा लेकर आई है इस दुनिया में, उसने क्या भुगतना है, उसको क्या अच्छा फल मिलना है, उसको क्या बुरा फल मिलना है, वो हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम उस आत्मा के कर्मों के क्लोज नहीं जाएंगे. Am I making some sense to you? आप कुंडली देखते हो, उसमें 12 हाउसेस देखते हो, उसमें आप 9 प्लैनेट्स देखते हो, राशियां देखते हो. That is only the outer body of your karma. The deep CAT scanning, the CT scan of the kundli is when you look at nakshatras. Naksha means to get closer of a particular thing. And when you get closer, what is that closer thing preserving is actually your real destiny. These words are very important words that I am trying to tell you. How does it work? How does it work? You know, this is a person A. He's sitting here. He is starting a havan, a puja. This person is starting a havan, a puja, or an anushthan. And a Pandit ji is sitting in front of him. You know what will he ask first? Pandit ji will ask him your gotra. Gotra. Your gotra is your lineage. And the lineage belongs to Sapat Rishis. Bhardwaj, Kashyap. Go, lineage, Tra, a tool to understand your lineage. Okay, Tra is a tool. Gotra. Gotra. And he will also ask you your Janma Nakshatra. And then he will do a mantra. And during the mantra, he will also pronounce the nakshatra of today. आज कौन सा नक्षत्र है वो बोलेगा, लुधियाना स्थाने आज का नक्षत्रे कश्यप गोत्रे नवनी चित्कारा पूजा स्थापिति. He will say these lines. आपने सुना है ये सब बोलते पंडित जी को? You know what is he trying to tell you? Today's nakshatra plus your janam nakshatra, I'll write Nax. Your lineage, it is a combination of your fingerprint. ऑफिस जाते हो, फिंगरप्रिंट लगाते हो, बायोमेट्रिक्स बायोमेट्रिक्स लगाते हो, दरवाजा खुलता है. ये वो बायोमेट्रिक्स है, ये वो फिंगर है जिससे आपका हेवनली
अकाउंट ओपन हो जाता है, सो दैट आपकी पूजा अनुष्ठान वहां पे पहुंच सके। इट इज अ फिंगरप्रिंट। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में समझा नहीं था इसको। इट इज अ की टू ओपन द लॉक ऑफ योर कार्मिक सेटलमेंट्स। नवनीत चित्कारा का ये गोत्र, ये जन्म नक्षत्र, ये आज का नक्षत्र, ये स्थान, और ये पंडित बैठ के हवन शुरू करवा रहा है, वो तब भी पहुंचेगा। और वो आपको कहता है कि आप अपने दोनों हाथ जो है जमीन पे लगाओ, टच करो। ओम पृथ्वी नमः, भौमाय नमः। He is giving your fingerprints to the world because everyone has a unique fingerprint. Everyone has a unique biometric. इसमें गोत्र तो आपकी लीनिएज हो गई, समझ में आया। नक्षत्र क्या है एक्चुअल में, इसको मैं नक्षत्र को एक बड़े सरल तरीके से आपको समझाता हूं। ये है नक्षत्र, उसके बाद है प्लैनेट्स जिनको हम ग्रहज बोलते हैं, और फिर आते हैं भावज, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशंस। आप इनको हाउसेस भी बोल सकते हो, आप इनको 12 हाउसेस बोल सकते हो, आप इनको 9 प्लैनेट्स बोल सकते हो, और आप इनको 27 नक्षत्र बोल सकते हो। अब ध्यान से समझना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। इस दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है, उस मंत्र के बारे में मैं 5 मिनट बाद चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक लेमैन टर्म में एक टेक्निक सिखाता हूं। टेक्निक क्या है? आपने कभी हाइड्रोथर्मल प्लांट या हाइड्रो प्लांट से बिजली बनती हुई देखी है? वहां पर बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइन्स होती हैं, उनके ऊपर पानी गिर रहा होता है, और उस पानी गिरने की वजह से वहां पे बिजली पैदा होती है। सपोज करो वो बड़ी बड़ी टर्बाइन्स और वो पानी जहाँ पे गिर रहा है वो नक्षत्र है। उसके बाद वो बिजली थ्रू अ ट्रांसफार्मर एक ऐसी जगह पे जाती है जिसको कि हम पावर प्लांट बोलते हैं, और उस पावर प्लांट से हाई टेंशन वायर्स निकलती हैं जिसमें बहुत तेज बिजली का करंट होता है। यस और नो? पावर प्लांट से हाई टेंशन वायर्स निकलती हैं, और ये हाई टेंशन वायर आपके घर में फर्दर ट्रांसफार्मर में जितना लोड आपको चाहिए उतना लोड लेके आपके घर का बल्ब जगाती है। ये सारे देवता हैं, ये पावर हाउस है, इनके पास जबरदस्त एनर्जी है जिसकी आपको शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके कर्म ही इतने अच्छे नहीं है कि आपको देवताओं की पावर मिल सके। ये जितना भी पावर हाउस है ये नक्षत्र है, इसमें से प्लैनेट्स, ग्रहज एनर्जी फेच करते हैं। एनर्जी फेच करते हैं, कैसे फेच करते हैं? मूव हो के, मूवमेंट के साथ, जिसको बोला जाता है ग्रहचर, या लेमैन टर्म में बोलते हो गोचर। चर का मतलब होता है मूवमेंट, चर अचर, मूवमेंट, मूवेबल। ग्रहज मूव करते हुए इन पावर हाउसेस में से एनर्जी लेते हैं
और आपकी कुंडली के हाउसेस को एनर्जी देते हैं। हाउसेस मतलब भावास, एक्सप्रेशंस, और उनका फल आपको मिलता है। आपकी जिंदगी में कितना कुजारा होगा, किस कलर का होगा। बल्ब रेड है, मंगल है, मंगल इफेक्ट कर रहा है, ब्लू है, सैटर्न इफेक्ट कर रहा है, व्हाइट है, शुक्र इफेक्ट कर रहा है, येलो है, जुपिटर इफेक्ट कर रहा है, ग्रीन है, मरकरी इफेक्ट कर रहा है। आपके कर्मों के हिसाब से कौन सा रेनबो बन रहा है। लाइट फ्लक्चुएट कर रही है कि लाइट पूरी जल रही है। आपको अपना भविष्य पूरा क्लियर दिख रहा है कि आपको अपना भविष्य बहुत कम लाइट में संघर्ष करके देखना पड़ रहा है। मतलब ग्रह डिबिलिटेटेड है, एग्जॉल्टेड है, क्या है क्या नहीं है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहा है। ये सिस्टम है ब्रह्मांड का। और जो मंत्र है वो मंत्र कौन सा है? ओम भूर्भुवः स्वः। ओम का मतलब क्या है? आ ई म, ओम। ब्रह्मा विष्णु महेश से एक एनर्जी आ रही है, ओम भूर्भुवः स्वः। ओके, तो ये भूर भव और स्वः को समझना जरूरी है। यू नो व्हाट इज भूर? भूर, ओम भूर। भूर इज अर्थ, जहां पर आप हो। भुव इज मिड हेवन, जहां पे आपके सारे ग्रह हैं। और स्वह, स्व इज स्वर्ग, हेवन, जहां पे सारे नक्षत्रज हैं। सो नक्षत्रज आर ऑल इन द हेवन, planets are in the mid heaven, and you are on the earth. किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर। सूर्य को हम साक्षी लेते हैं। तत्सवितुर, सवितुर इज द सूर्य, आदित्य। तो भूर इज हाउसेस, अर्थ। भुव इज द ग्रह मंडला विच इज कॉल्ड मिड हेवन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रह मंडला। एंड नक्षत्र इज अ स्वर्ग। 28 कॉन्सलेशंस, 28वां अभिजीत है। 27 कॉन्सलेशंस, 27 अबॉर्ड्स ऑफ द देवताज, द पावर हाउसेस, जहां से आपके प्लैनेट्स पावर को फेच कर रहे हैं आपके कर्मों के बेस के ऊपर। और आपके हाउसेस, आपके भावाज में, एक्सप्रेशन में, आपके थॉट्स में वो एनर्जी आ रही है। सो दिस इज अ 3 लेयर सिस्टम। भूर मंडला अर्थ, भुव मंडला मिड हेवन ग्रह, एंड स्व स्वर्ग। अब एक बात बताइए, अगर ग्रह दूसरे लेवल पे है, हाईएस्ट लेवल पे अगर नक्षत्रज हैं, तो क्या कोई ग्रह नक्षत्र को लीड कर सकता है? A lower level thing can be a lord of a upper level thing. This is the biggest mistake that the ruler of Ashwini is Ketu. The ruler of Kritika is Sun. The ruler of Bharni is Venus. This is the biggest mistake I made for 1.5 years.
in the initial years of my learning. Actually, the ruler of Ashwini is Ashwini brothers. Ruler of Bharni is Yamaraj. Ruler of Kritika is Agni. तो आपको जो मैं स्टडी करवाऊंगा वो ये नहीं करवाऊंगा कि अश्विनी, केतु, भरणी, वीनस और कृतिका सूर्य। वो मैं एक छोटा सा एस्पेक्ट लूंगा जब मैं विंशोत्तरी महादशा सिस्टम को अप्लाई करूंगा। केवल विंशोत्तरी महादशा सिस्टम के अंदर अश्विनी केतु को बिलोंग करता है, भरणी वीनस को बिलोंग करता है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिलोंग। आई एम नॉट सेइंग केतु इज लॉर्ड ऑफ अश्विनी। आई एम नॉट सेइंग Venus is lord of Bharni. I am not saying Surya is lord of Kritika. Ketu is associated with Ashwini. Venus is associated with Bharni. Surya is associated with Kritika. Moon is associated with Rohini. Mangala is associated with Mriksira. Am I making some sense to you? Only based on Vimshottari Mahadasha system. Only. और उन्होंने भी केतु को पहला नक्षत्र क्यों दिया? Why केतु as a first नक्षत्र? हाँ, फिर वीनस, फिर सूर्य, फिर चंद्र, हाँ, फिर मार्स, फिर राहु, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर मर्करी। तो ये 9 ऐसे सर्कल, फिर से सर्कल स्टार्ट, फिर से केतु, वीनस, ऐसे 9 27 नक्षत्रों को 3 बार शिवजी भगवान ने बोला। 3 into 3 27 बन गए। इसी सर्कल को अगर मैं 3 बार रिपीट कर दूं, इसी सर्कल को 3 बार रिपीट कर दूं और 27 नक्षत्रों के सामने रख दूं तो उनकी लॉर्डशिप्स आ जाती है इसी ऑर्डर में। हाँ, क्यों क्यों बोला? उन्होंने बोला कि हे आत्मा, आत्मन्य मोक्ष प्राप्ति। आत्मा, आपको मोक्ष चाहिए। आत्मा ने उस समय कहा चाहिए, उसको मोक्ष मिल गया। आत्मा ने कहा कि मोक्ष नहीं चाहिए क्योंकि मोक्ष का कारक केतु है, उसको मोक्ष नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको स्पर्म चाहिए, उसको स्पर्म चाहिए। आप और मैं अपने पहले जीवन के रूप में क्या थे? स्पर्म। शुक्र, वीनस, you get a sperm, you become a sperm and you take birth. From the sperm you get atman, आत्मा को स्पार्क मिलता है, सूर्य। then you get mind, then you get blood, body, then you get desire, then you get wisdom, then you get longevity, and then you get buddhi. These are the basis of Vimshottari Mahadasha system. So you cannot associate grahas with nakshatras. Nakshatras are unique concepts. Since Vimshottari Mahadasha is the most accurate system, okay? Vimshottari Mahadasha is the most accurate system to understand a Kundli. That is why we associate these grahas with nakshatras and the results are accurate. And the results are accurate.
Rahu is for your desire. Rahu is unmanifested desire. जो आप करना चाहते थे, आपकी मृत्यु हो गई, आप मर्सिडीज लेना चाहते थे, लेकिन आप मर्सिडीज लिए बिना ही चले गए इस दुनिया से। वो राहु के मन में डिजायर है, अनमैनिफेस्टेड। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट। यहां तक किसी को ना समझ में आया हो? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आई कैन मूव अहेड, अगर है तो आई कैन एड्रेस इट। यस सुधांशु जी। हरे कृष्णा गुरुजी, प्रणाम। हरे कृष्णा। बिल्कुल क्लियर है गुरुजी। सिर्फ एक क्वेश्चन ये था, जैसे आपने विंशोत्तरी दशा साइकिल बता दिया, तो नक्षत्र का भी सीक्वेंस का कोई ऑर्डर है? दैट व्हाई डू वी स्टार्ट विद फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी? No, we don't start with Ashwini as a first nakshatra, okay? Okay, so when we start from Ashwini, there are different padhatis. Some people start Kritika as a first nakshatra known as Kritikadi. Okay, people start with Ashwini as a first nakshatra as a Ashwinadi. There are people who start Adra as a first nakshatra. Various techniques are there. So that is known as Adradi. So there are various. But since Vimshotri Mahadasha is the most accurate one, तो हम अश्विनी को पहला नक्षत्र मान के केतु के साथ एसोसिएट करते हैं। ओके, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं तो अश्विनी और रेवती ये दोनों नक्षत्र ना एक साथ पॉइंट में जुड़े हुए दिखते हैं ऐसे। I'll just share my screen। जैसे नक्षत्र एक्चुअली मंडला है, सर्कल है ऐसे, तो हमें ना अश्विनी और रेवती ऐसे दिखते हैं। एक से शुरू हो रहा है, एक से खत्म हो रहा है, बाकी सारे नक्षत्र ऐसे, समझ रहे हो? और इसके बीच में यहाँ पे मिल्की वे है। मतलब समझो कि ये हायर लेवल प्लेन है, ये उसके मिडल प्लेन है, और उसके बीच में यहाँ पे अर्थ है, धरती। सो दिस इज लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 2 मिल्की वे जिसमें प्लैनेट्स है, एंड लेवल नंबर 3 अर्थ। ओम भूर्भुवः स्वः। और रेवती और अश्विनी ऐसे मिले हुए नजर आते हैं। उन्होंने बोला अश्विनी से स्टार्ट करते हैं पहला नक्षत्र। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि जातक को एंड में बुद्धि मिलती है तो वो रेवती से मिलती है। क्योंकि रेवती के जो देवता है वो जातक को मोक्ष दिलवा सकते हैं, मोक्ष द्वार है रेवती। तो जब उनको लगा कि मोक्ष का द्वार रेवती है तो रेवती को उन्होंने लास्ट नक्षत्र बना दिया। जब आप रेवती सीखोगे तो आपको पता लगेगा कि इनके जो देवता है वो मोक्ष के द्वार की तरफ ले जाते हैं, और केतु मोक्ष है। अश्विनी ब्रदर्स कैन रीजुवनेट यू। तो उन्होंने अश्विनी और रेवती को लास्ट और अश्विनी को पहला नक्षत्र ले लिया रिस्पेक्टिवली, अगेन बेस्ड ऑन देयर देवतास, कि उनके देवतास के ट्रेट्स कैसे थे। जैसे आद्रा को वो नहीं ले सकते थे पहला। आद्रा तूफान के बाद जो शांति होती है, प्रलय के बाद जो शांति होती है, वो आद्रा है। उत्तर फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी शादी है। भोले बाबा की शादी उत्तर फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी में हुई। पूर्व फाल्गुनी में बारात चली थी, उत्तर फाल्गुनी में फेरे हुए थे। हस्ता आर्किटेक्ट है, धनिष्ठा पैसा है, वसूज है धनिष्ठा के अंदर। तो इसलिए उन्होंने देवताओं के ट्रेड्स को लेकर उन्होंने नक्षत्रा की नंबरिंग की है 1 से 27 तक। जैसे जैसे हमारा जीवन कटता है वैसे वैसे।
आगे बढ़े। एब्सोल्युटली क्लियर। अभी मेरे से कोई ये तो नहीं पूछेगा, अच्छा पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि मैंने अभी क्लियर नहीं किया आपको। आपको पता है कि ब्रह्मांड में कोई राशियां नहीं होती हैं। कोई राशियां नहीं होती ब्रह्मांड में। 27 नक्षत्र ऐसे नजर आ रहे थे। एरीज का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। उन्होंने क्या किया, उसको 27 नक्षत्रों को डिवाइड करना था। हर एक नक्षत्र के 4 कदम है, 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। उनको पदाएं बोलते हैं, चरण बोलते हैं। या तो आप नक्षत्र को नॉर्थ से देख सकते हो, वेस्ट से, साउथ से, ईस्ट से। 4 पदाएं हैं, 4 चरण है। 27 नक्षत्रों के कितने चरण बनेंगे अगर 4 चरण हो? 27 मल्टीप्लाई बाय 4 108। 108 को अगर 12 से डिवाइड करना पड़े, 12 से। अब 12 से ही क्यों? क्योंकि पूरा 360 डिग्री को अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वो 12 से ही होगा। मैथमेटिक्स है। 360 30 से डिवाइड करो तो 12 जवाब आएगा, तभी विभाजन होगा उसका, नहीं तो विभाजन नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक पॉकेट उठाई। एक पॉकेट में 9 छोटी छोटी पॉकेट्स थी। एक पॉकेट में 9 छोटी छोटी पॉकेट्स थी। उस एक पॉकेट को नाम दे दिया राशि। और ऐसी 12 पॉकेट्स जब बनी तो सारे के सारे नक्षत्र कवर हो गए। 12 9s are 108 and 108 divided by 27 is equal to 4 padas of each nakshatra. Simple. आपको मैं पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देता हूं कि ब्रह्मांड को ऋषि मुनियों ने कैलकुलेट कैसे किया। इसीलिए मैं कहता हूं ज्योतिष जो है वो मैथमेटिक्स है। ये 360 डिग्री का एक सर्कल है। इसको 30 डिग्री ईच में अगर डिवाइड करो तो 12 हिस्से बनते हैं। इन्होंने बोला 12 भाव या 12 राशि। और ये किस लेवल पे हो रहा है? ये किस लेवल पे हो रहा है? ये मिड हेवन में हो रहा है बात। कहां पे हो रही है? मिड हेवन में। भाव जो है वो धरती पे है, एक्सप्रेशन आप तक पहुंच रहे हैं। राशियां मिड हेवन में है। राशि इज नथिंग बट अ पॉकेट, एक छोटा सा हिस्सा, अ वर्चुअल पॉकेट। क्या वर्ड यूज करेंगे हम? वर्चुअल पॉकेट। 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित करना है। तो मुझे 27 के 4 हिस्से किए थे। हर एक नक्षत्र के 4 छोटे छोटे पार्ट्स थे। तो 4 छोटे छोटे पार्ट्स आए तो कितना हुआ? स्क्रीन पे देखो प्लीज, अपना मत करो, इधर देखो। क्योंकि 12 से डिवाइड करना था तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ना था ना 4 से, ताकि मैं एक ऐसा नंबर आ सके जो 12 से डिवाइड होता हो। 3 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता। 108 आया। इसको 12 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया? 9। सो 1 राशि इज इक्वल टू 9 पॉकेट्स। और इन 9 पॉकेट्स को मैं 9 चरण भी बोल सकता हूं। तो एक राशि में 9 चरण होते हैं। 2.5 नक्षत्र, 2 नक्षत्र एंड 1 पदा ऑफ नक्षत्र। राशि
कोई, अब ज्योतिष आचार्य में मैंने आपको बताया कि राशियों को ग्रह कैसे मिले, याद है? 5th हाउस से। 5th हाउस से आप आगे मूव करते हो तो पहले मंगल आया, चंद्रमा आया, फिर मदर एंड फादर लिए थे ना 4th एंड 5th हाउस। आपको वो मेरा लेक्चर पता ही है जिसमें मैंने आपको समझाया कि हर एक राशि को ग्रह कैसे मिले। लेकिन ये अलग मंडला है और नक्षत्र अलग मंडला है, वो इससे भी ऊपर है। सो एक नीतिका ने क्वेश्चन पूछा था कि सर, इफ मार्स इज एसोसिएटेड विद एरीज, देन हाउ इट इज एसोसिएटेड, हाउ नक्षत्र आर हैविंग अश्विनी एज अ केतु एंड भरणी। ये तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। दिस क्वेश्चन डजंट इवन अराइज। दिस क्वेश्चन अराइज व्हेन यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द मंडला, कि वो स्वर्ग मंडल है। वो भी हम अश्विनी केतु को सिर्फ तब दे रहे हैं जब विंशोत्तरी महादशा सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज अश्विनी के देवता तो अश्विनी कुमार है, भरणी के देवता तो यमराज है। भरणी के पास एनर्जी यमराज की है, कृतिका के पास एनर्जी सूर्य देवता की है। यू कैन नॉट एसोसिएट देम विद ग्रहस लाइक दैट। और ज्योतिष आचार्य के लेक्चर में मैंने क्लियरली आपको समझाया कि बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी पोजीशन इन द सोलर सिस्टम राशियों को ग्रह असाइन हुए, राशियों को ग्रह असाइन हुए बेस्ड ऑन दी विंशोत्तरी, बेस्ड ऑन दी प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स ऑफ द प्लैनेट इन द ब्रह्मांडा। उसका आप लेक्चर जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने 4th एंड 5th हाउस को मदर एंड फादर बोला, उसके बाद मदर की तरफ से आगे बढ़े और फिर फादर की तरफ से आगे बढ़े, राशियों को ग्रह असाइन होते गए। सिंपल। तो इस प्रकार जो नक्षत्र हैं, जब हम एक कुंडली बनाते हैं तो एक कुंडली में, एक घर में नक्षत्र को कैसे उन्होंने प्लेस किया। राशियां वर्चुअल होती हैं, या इंद्रदेव एंड साची देवी, करेक्ट। सो ऐसे ये कुंडली है, ये 1st हाउस है। इसमें 4 पदाएं अश्विनी नक्षत्र की, 4 पदाएं भरणी नक्षत्र की और 1 पदा कृतिका की। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 पदाएं बची हुई कृतिका की, 4 पदाएं किसकी, रोहिणी की। ठीक है। 4 और 3 कितनी होगी, 7, और 2 पदाएं मृगशिरा की। इस तरह से करते 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 सारे नक्षत्र फिट हो गए, क्योंकि हमने उनको 12 का मल्टीपल बना दिया। 27 नक्षत्र थे, 27 नक्षत्र के हर एक के 4 चरण बना दिए, 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 108 आ गया। 108 को 12 से डिवाइड किया तो हर एक घर में 9 पदाएं आ गई, 9 चरण आ गए, और पूरे के पूरे नक्षत्र फिट हो गए कुंडली के अंदर। लेकिन मंडला कैसे थी, ये वो मंडला है, ये है नक्षत्र मंडला, उसके नीचे है ग्रह मंडला, उसके नीचे धरती भुआ, आप, यू। पावर हाउस, मेजर पावर हाउस, फिल्ट्रेशन बेस्ड ऑन योर कर्मा, ग्रह अपना फ्लेवर ऐड करके स्टेशनरी पावर हाउस से एनर्जी ले रहे हैं, घूम घूम के, मूव कर करके, मूव कर करके वो आपसे एनर्जी ले रहे हैं, यहाँ से मूव कर करके नक्षत्रों के बीच में, और वो आप तक ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक चिप लगी हुई है, उस चिप को बोलते हैं मून। और वो जो चिप है वो मून है, इसीलिए आपकी बॉडी में 71% वाटर है, और मून रोज घूम रहा है सबसे तेज। यही डिफरेंस है गोचर में और ग्रहचर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोचरा एंड ग्रहचरा? आप लोग ज्योतिष सीख रहे हो इतनी तरह से, कौन मुझे बताएगा डिफरेंस बिटवीन गोचर एंड ग्रहचर? टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोचर एंड ग्रहचर? What is the difference between Gochar and Grahachar?
Guruji, Gochar is related to moon, and Grahachar is related to the other planets, रिलेटेड टू like मून moon. का जो ट्रांजिट है उसको गोचर बोलते हैं, और मून से हटके बाकी जो प्लैनेट्स का ट्रांजिट है उसको ग्रहचर बोलते हैं। और 99% लोग ग्रहों के ट्रांजिट को भी गोचर ही बोलते हैं। गोचर इज बेसिकली seen, always seen from the moon or with respect to moon. Gochar has to be seen either by making moon as a lagna or with respect from the moon or the gochar of the moon. That is, go means cow, and cow here is moon, and chara is gazing on nakshatras, जो आपके फिक्स्ड पॉकेट्स हैं, जो आपके कर्मों को, आपकी एनर्जी को पकड़ के बैठे हुए देवता, इसीलिए देवताओं को पूजा जाता है, राइट। एंड ग्रहचर इज द अदर प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट स्लो होते हैं। जैसे शनि का गोचर बहुत स्लो है, जुपिटर का गोचर बहुत स्लो है। और जो गोचर है इसमें एस्पेक्ट्स यानी कि दृष्टि कंसीडर नहीं होती है, याद रखना। गोचर में एस्पेक्ट नहीं, लेकिन जो ग्रहचर है इसमें दृष्टियां कंसीडर की जाती हैं। जैसे अगर मंगल गोचर कर रहा है तो मंगल की दृष्टि कंसीडर करेंगे। अगर शनि ग्रहचर कर रहा है, मान लो शनि आज की डेट में एक्वेरियस में है या कैप्रिकॉर्न में है, तो उसकी तीनों दृष्टियां हम वो करेंगे। लेकिन आज अगर चंद्रमा एक पर्टिकुलर प्लान नक्षत्र में है, आज चंद्रमा एक पर्टिकुलर नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो हम चंद्रमा की दृष्टि को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ चंद्रमा का इफेक्ट उस नक्षत्र में क्या आ रहा है उसको कंसीडर करेंगे। ये बात आप याद रखना, इसको भूलना नहीं है। ग्रहचर इज प्लैनेटरी मूवमेंट, गोचर इज अ मून ट्रांजिट। काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। हम हमेशा ज्योतिष सीखते हैं, बहुत से लर्नर्ड लोग भी ज्योतिष सीखते हैं, लेकिन एवरी टाइम वी लर्न ज्योतिष समथिंग न्यू कम्स अप, सम न्यू कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो जाता है। So now you understand गोचर एंड ग्रहचर, राइट। गोचर इज सीन, लोग कहते हैं ना गोचर को कहां से देखना है, वो क्या बोलते हैं, शनि के ट्रांजिट को कहां से देखें, वो बोलते हैं चंद्रमा से भी देखो और शनि से भी देखो, लगन से भी देखो। वो एक्चुअली गोचर और ग्रहचर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद ही कंफ्यूज्ड है। फिर वो कहते हैं डिग्री चेक करो, प्लैनेट की और असेंडेंट की डिग्री वहां से देखो। देयर आर वेरियस टेक्निक्स, वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन जो आज का गोचर है, जिसको हम प्रश्न में भी यूज करते हैं, वो अगर चंद्रमा के बेस के ऊपर देख रहे हैं तो वो एस्पेक्ट रहित है। अगर हम उसको ग्रह के बेस के ऊपर देख रहे हैं तो उसमें एस्पेक्ट्स हैं। ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए हम केवल कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को देखकर ही प्रेडिक्शन कर देते हैं, जिसमें हमें दृष्टि की जरूरत ही नहीं है, हमें कुंडली की जरूरत ही नहीं है, उसको बोलते हैं गोचर। और जिसमें हम ग्रहचर देखते हैं तो उसमें हम सारे प्लैनेट्स की पोजीशंस देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए मेरा कभी भी दिल नहीं करता किसी भी ग्रह को बेनिफिक या मेलेफिक कहने का, क्योंकि शनि की अपनी एक एनर्जी है। आप बार बार शनि को मेलेफिक मेलेफिक बोलोगे तो हो सकता है शनिदेव को अच्छा ना लगे, क्योंकि शनिदेव जो भी रिजल्ट दे रहे हैं वो आपके कार्मिक पॉकेट्स की वजह से दे रहे हैं। जो बीज आपने बोए हैं उन नक्षत्रों के अंदर, जो आपके कर्म देवताओं के सामने पड़े हैं, शनिदेव उनको ही जाके फेच कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप अपना कर्म सेटल कर सको। और आप शनिदेव को गलत क्यों बोल रहे हो? आप समझे नक्षत्रों का सिस्टम। नक्षत्र एक बहुत बड़ी फील्ड है,
एक खेत है जिसमें आपने बीज बोए और गाय उस खेत में जाके चर रही है, गाय ग्रह है और वो खोद खोद के चर रही है, वो आपके ही यू नो जो बीज आपने बोए हैं उनको निकाल रही है और आप तक पहुंचा रही हैं। तो एक प्लैनेट है वो बेनिफिक और मेलेफिक कैसे हो सकता है? कोई प्लैनेट बेनिफिक नहीं होता, कोई प्लैनेट मेलेफिक नहीं होता। बृहस्पति जैसे ग्रह मृत्यु देते हैं, सिर्फ बिहेवियर फर्क होता है। हर एक ग्रह का बिहेवियर फर्क है। जैसे मंगल है, वो आपके कर्मों को निकाल के लाएगा नक्षत्र में से और आपको ना बिना मौका दिए आपको वो आपके कर्मों का फल दे देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, क्योंकि मंगल की अपनी नेचर है। शनि आपको चांटा मार के वही रिजल्ट देगा। बृहस्पति आपको आइसोलेशन देके दुख देके देगा। चंद्रमा थोड़ा सा वक्त दे देगा, राइट। शुक्र जो है वो आपको थोड़े से प्लेजेंट वे से धोखा करवा देगा। मतलब क्या कहने का क्या मतलब है कि नक्षत्रों में जो आपके कर्म छिपे हैं, जो आपके एक्सप्रेशन छिपे हैं, वो ग्रह आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ सटल वे से और कुछ हार्श वे से, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्रह। इज इट क्लियर? क्योंकि आप ग्रह की नेचर नहीं ना बदल सकते। नीम को नीम लगता है, केले को केला लगता है, आम को आम लगता है। तो ग्रह की नेचर, ग्रह के फ्लेवर की वजह से आपको वो रिजल्ट मिल रहा है और आपके कर्मों के सिस्टम के बेस के ऊपर विमशोत्री महादशा सिस्टम डिसाइड होती है। चंद्रमा डिसाइड करता है कि इसका जीवन, क्योंकि चंद्रमा वो चिप है जिसके पास 71% आपके कर्म है। आपका सारा माइंडसेट चंद्रमा के पास है। चंद्रमा डिसाइड करता है कि इसकी दशा कहाँ से शुरू करनी है, शनि के से, राहु से, केतु से, बुध से। इसीलिए चंद्रमा को मनस का नाम दिया गया है। और चंद्रमा वो चिप है, 71% आपका कार्मिक सेटलमेंट रखती है और वो रोज का रोज कार्मिक सेटलमेंट आपको देती है गोचर करके। चंद्रमा हर रोज एक नक्षत्र में गोचर करता है। आपको पर डे का कार्मिक सेटलमेंट, आज आपको क्या फल मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितना बार दिल टूटेगा, कितने बार आप हंसोगे, कितने बार आप रोओगे, ये सब चीजें आपको चंद्रमा बताता है, क्योंकि उसके पास आपका मेजर एक्सप्रेशन, मेजर कर्म, ये सब चंद्रमा के पास है। और बाकी ग्रहचर भी है। देयर आर अदर ग्रहचर्स आल्सो। नाउ यू नो that there are 3 mandalas. Nakshatra is a mandala of God, heaven. सभी देवी देवता वहां पे रिसाइड करते हैं। They are the power houses. They are the power houses. Grahas are the energies or the wires that are fetching the amount of energy that you deserve based on your karma residing in the nakshatra and transmitting to your bhavas, to your expressions. ये गेम है सारी, इसको समझना है। इसी को मैं नक्षत्रों में समझाता हूं। देवताओं के बल पे, ग्रहों के बल पे, दशा सिस्टम के बल पे, गोचर के बल पे और ग्रहचर के बल पे। Is it clear? Yes, you will see the celestial things in a very different way from today onwards. आप स्टार्स को देखो ना, जैसे ये चंद्रमा है, आपको जो स्टार्स हैं वो चंद्रमा से बड़ी दूर नजर आएंगे। ऐसे 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 चंद्रमा नजर आएगा, यहाँ पे स्टार्स नजर आएंगे।
बहुत दूर वो नक्षत्र मंडला, स्वर्ग, सप्तऋषि है वहां पे, 12 आदित्य है वहां पे, और हम यहाँ पे हाउसेस में बैठे हैं, अपने एक्सप्रेशन में बैठे हैं, अपने माइंडसेट में बैठे हैं। वो 12 टुकड़े हैं जिनको हम रोज एक्सेस करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। 12 हाउसेस, रिमेम्बर, रूटीन। वो हम, हमारी जो रूटीन है वो हमारे 12 एक्सप्रेशन है, हमारे 12 भाव है। उस रूटीन को कैसे जो है वो किया जा रहा है, वो पावर सोर्स देवताओं से आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप आप ग्रहों को मत इतना पूजो, आप देवताओं को पूजो, ताकि आपका पावर हाउस सही हो सके। अगर पावर हाउस में सही आएगा तो सारा सिस्टम ही सही हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि ग्रहों के बीज मंत्र करने का क्या फायदा। आप ओम नमः शिवाय करो, आप रुद्राज को पूजो, आप आदित्य को पूजो, सवितुर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, आप वसुओं को पूजो, आप नक्षत्र की अपा देवी को पूजो, रुद्रा को पूजो, शिवजी को पूजो, माँ पार्वती मृगशिरा उनको पूजो, आप विश्वकर्मा को पूजो, हस्ता, विष्णु जी को पूजो, श्रवणा, 100 डॉक्टर्स, शतभिषा, वरुण देवता शतभिषा, उनको पूजो। Why to make prayers to the planets? I think it is enough for today. ठीक है, I really wanted to launch this today, so I did it, although I was not very well. I will see I can take a J8 or not, because I feel very exhausted, very very exhausted. Right, तो देखता हूँ आधे घंटे में डिसीजन लेता हूँ that I can do it J8 or not. ये तो next week तो है ही है. Yes, Nitika, that is how the question was irrelevant, because पता नहीं ना होता। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब ग्रुप में कैसे देता, मैं कितना लंबा लिखता, आपको कितना समझ में आता नहीं आता। मैं कई कई ऐसे सवाल आते हैं जो हम मौके पे जवाब ही नहीं दे सकते। यार मैं कैसे समझाऊं, ये तो बाद में समझा सकते हैं जब मैं क्लास लूंगा, है ना, तब समझ में आता है, अभी नहीं आता। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी पेशेंस को, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मेरे को इम्पेशेंट स्टूडेंट्स भी मिले हैं, पेशेंट स्टूडेंट्स भी मिले हैं। तो पेशेंस रखो, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। हर एक चीज विल बी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टू यू। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं बैठा हूँ, है ना। इफ यू स्टिल हैव कंफ्यूजन, आई एम देयर। तो अब जब हम समझेंगे कुंडली को, किसी नक्षत्र को, कि मेरा चंद्रमा अनुराधा में है या शतभिषा में है, तो अनुराधा का मतलब क्या है कि राधा मैया, मित्रा, फ्रेंडलीनेस, है ना। शतभिषा वरुणा, श्रवणा, विष्णु जी। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अग्नि देवता को समझने के लिए कृतिका नक्षत्र को समझना बहुत जरूरी है, तो आपको अग्नि देवता के बारे में पता लगेगा। माँ पार्वती को समझना है तो मृगशिरा को समझो, समझ रहे हैं। अपा देवी को समझना है, आपको 12 के 12 आदित्य समझने हैं, 11 रुद्रा समझने हैं, हनुमान जी को समझना है। स्वाति नक्षत्र को समझो, पवन पुत्र हनुमान। तो हनुमान जी आपको स्वाति नक्षत्र से समझ आ जाएंगे। वैसे ऐसे आपकी डेली रूटीन है, ऐसे ही मैं डेली रूटीन में 27 नक्षत्रों को 15 मिनट में समझा सकता हूँ। 15 मिनट में 27 नक्षत्रों की पिक्चर आपके दिमाग में बना सकता हूँ, लेकिन वो एंड में बनाऊंगा, अभी नहीं।
अभी नहीं। 27 नक्षत्रों को 15 मिनट में समझा जा सकता है इन डिटेल। कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन उस पे प्रैक्टिस करना, कुंडलियों के रिजल्ट देखना, फिर उन रिजल्ट को और कुंडलियों पे अप्लाई करना, कार्मिक पॉकेट्स को समझना, ये बहुत जरूरी है कि क्या ऐसा कर्म हुआ कि ये हुआ, क्या ऐसा कर्म हुआ कि ये हुआ, क्या ऐसा कर्म हुआ कि ये हुआ, क्यों सुख मिला, क्यों दुख मिला, कैसे सुख मिला, कैसे दुख मिला। जैसे जाने वाला इस दुनिया से चला जाता है और पीछे वो एक दुख का समुंदर दे जाता है, जिसमें इंसान रोज नहाता है, फिर रोज बाहर आता है, रोज नहाता है, फिर जब तक नई किश्ती नहीं मिलती। वो सब कार्मिक पॉकेट्स हैं, क्योंकि जो चला गया वो तो आगे देख रहा है, जो पीछे छूट गए वो उसकी तरफ देख रहे हैं और वो कभी वापस नहीं आता। यही जीवन है। इसी को आप बिजनेस के साथ भी जोड़ सकते हो, नौकरी के साथ भी, बच्चों के साथ भी, बीवी के साथ भी। आप अपने साथ हमेशा रहते हो, यू आर ऑलवेज विद यू। व्हेन यू आर ऑलवेज विद यू, you should always chant Hare Krishna Mahamantra. That is the best thing that can happen to a human. Thanks to Chaitanya Mahaprabhu for giving this mantra to the society, making it a Maha Mantra in complete Chandas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That is the best thing that can happen, और कुछ नहीं है। बाकी सारा हमारे कर्मों को निकाल निकाल के हम तक पहुंचाया जा रहा है। हम अपना नया रिएक्शन देके सुख दुख को, किसी किसी अच्छी चीज को सुख का नाम दे रहे हैं, किसी बुरी चीज को दुख का नाम दे रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंगली ना तो सुख होता है कोई चीज, ना दुख कोई चीज होती है। देयर इज नथिंग कॉल्ड सुख एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड दुख, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसे ही सुख आता है दुख आ जाता है, जैसे ही दुख आता है फिर सुख आ जाता है। एक्चुअल इसका कोई तीसरा ही नाम होना चाहिए था। सुख दुख का कोई थर्ड नेम होना चाहिए था, जो नहीं है। ठीक है, चलो आज इतना ही।